Good afternoon, everyone. Myself Satyam Gupta. A very warm welcome to all participants joining us today for this insightful webinar. Webinar on changes under income tax act with effect from 1st April 2026 and practical insights. This initiative has been thoughtfully organized under the guidance of CA Dr. Raj Chawla sir, whose continuous efforts to bring meaningful and practical learning opportunities to professionals truly deserve appreciation. With this, I would request CA Dr. Raj Chawla sir give the welcome address of today's speakers, Advocate CA Shikhar Garg. Thank you, Satyam. Good afternoon, everyone. First of all, I welcome you all in this today webinar on changes in income effect from 1st of April 26. And we are very honored to have with us very young and dynamic income tax expert, CA Shikhar Gargji. He will deliberate all the changes effective from 1st April 26. I will also request him, please share his PPT if possible with our members. And members, you all are requested to raise your query, if any, even during the deliberation of our speaker, sir. Or otherwise, you can post your query in Q&A or chat box. Our coordinator will take up all of your queries after the deliberation of our guest speaker. With this, happy learning to all. Thank you, Satyam. Most welcome. Today's key topic to be covered. Point number first, handling parallel compliance under old and new tax law, key changes in TDS forms and reporting requirements, practical challenges in transition like losses, appeals and assessment, correct approach to return filing for assessment year 26-27 versus tax year 26-27, system upgrades and avoiding common compliance error during transition. We are privileged to have with us Advocate C.A. Shikhar Garg, a distinguished professional with a unique blend of corporate experience, tax expertise, and litigation practice, a chartered accountant and US CPA. He began his career with BPCL and later transitioned into tax litigation and economic offense law. He has represented clients before the ITAT and the Delhi High Court, and he is a respected speaker at ICI Forums, known for his practical and insightful session. With his strong litigation and taxation background, we are confident that today's session will provide valuable clarity and practical guidance for professionals navigate the new tax regime. With this, now I request C.S. Shikhar Garg sir to take the session forward. Over to you, sir. Thank you, Satyam. Most welcome, sir. Thank you, CA Dr. Raj Chawla ji, for organizing such a brilliant initiative, which is for the betterment of the CA community, knowledge sharing, and it motivates speakers like me to come before you and provide my insights and learn from my professionals, from the professional. So I am very grateful to Dr. Raj Chawla ji. And now we'll begin our session without any delay. सत्यम, मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर, दिख रही है. Income tax changes with effect from 1st April 2026. बहुत सारे चेंजेस आए हैं, नॉट ओनली फ्यू, बहुत चेंजेस आए हैं. पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, प्लीज आप चैट बॉक्स में ये चीज मेंशन कीजिए कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा सेशन पहले भी अटेंड किया है. विद रिगार्ड टू, मैंने इससे पहले कई सेशंस दिए हैं विद रिगार्ड टू इनकम टैक्स एक्ट 2026, इनकम टैक्स एक्ट 2025, इनकम टैक्स रूल्स 2026. तो कितने कितने पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी, हाँ,
कितने पार्टिसिपेंट्स ने इनकम टैक्स एक्ट 2025, इनकम टैक्स रूल 2026 को अटेंड किया है? बिकॉज दोज आर एक्चुअली द लीगल चेंजेस। इनकम टैक्स रूल्स के बारे में मैंने बताया था, दोज आर प्रोसीजरल चेंजेस। वो चेंजेस क्यों इंपॉर्टेंट है? वो चेंजेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने क्लाइंट को उसी बेसिस पे गाइड करते हैं, और हमारे क्लाइंट हमसे एडवाइस उन्हीं चीजों की लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 के जो चेंजेस आए हैं, यहां पे मैं आपको बहुत से प्रोसीजरल चेंजेस के बारे में बताऊंगा। ये मैं आपको मेजर प्रोसीजरल चेंजेस के बारे में बताऊंगा जो आने वाले हैं। मैं इसमें लीगल चेंजेस के बारे में बहुत कम डिस्कशन करूंगा। मेजरली जो लीगल चेंजेस आए हैं वो सब आपको भी अब आइडिया होंगे कि क्या क्या चेंजेस हो गए हैं लीगली। बट जो प्रोसीजरल चेंज है वो सबसे पहले आया है विद रिगार्ड टू इनकम टैक्स पोर्टल। इनकम टैक्स पोर्टल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से कई चेंजेस आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा इनकम टैक्स पोर्टल की फंक्शनैलिटी। किन किन लोगों ने देखी है? प्लीज यस बोलिए या नो बोलिए। यहाँ पे कितने लोगों ने इनकम टैक्स पोर्टल की फंक्शनैलिटीज देखी है? नहीं 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 नहीं, ज्यादातर लोग नो लिख रहे हैं, कुछ लोग यस लिख रहे हैं। इनकम टैक्स पोर्टल की फंक्शनैलिटी में बहुत चेंज आया है। सबसे पहले आप लोग ई फाइलिंग पोर्टल खोल के देखिए उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर इनकम टैक्स पोर्टल में देखिए तो इनफैक्ट अभी तक दे डिड अ गुड जॉब। साइमल्टेनियस ऑपरेशंस हो रहे हैं बोथ द एक्ट्स के इस समय। 1961 का एक्ट भी जिंदा है, 2025 का एक्ट भी जिंदा है। दोनों एक्ट चल रहे हैं। उनके लिए पोर्टल में चेंज करना तो बहुत इजी है, लेकिन हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा हमें अब एक्ट अप्लाई करना है। और उसके लिए आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। मैं आपको वो गाइड करूंगा कि कहाँ पे आपको कौन सा एक्ट फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज, अगर आप चालान भरने जाएंगे उसमें वो पूछेगा कि 1961 में चालान भर रहे हैं, 2025 में चालान भर रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन आती है अपील फाइल करते हुए कि किस में भरे, आज चालान भर रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन आती है टीडीएस में। बहुत कोई भी चीज खोले, अगर हम ई प्रोसीडिंग्स खोले, इनकम टैक्स रिटर्न खोले, सब चीजों में ये पूछता है। और आगे और इसकी फंक्शनैलिटीज डेवलप होगी 26 एस में, जो फॉर्म 168 हो गया है, कि कौन सी प्रोसीजरल चीज ऑप्ट करनी है, वेदर 1961 और 2025। अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए प्राइमरीली थ्री थिंग्स है जो हम काम करते हैं। तीन काम करते हैं जो करंट ईयर प्रोसीजरल वर्क है। एक करंट ईयर प्रोसीजरल वर्क करते हैं जो कि टीडीएस, एडवांस टैक्स एंड अदर प्रोसीजरल वर्क करते हैं। कोई मेरे को बता सकता है करंट ईयर प्रोसीजरल वर्क क्या है? प्लीज टाइप कीजिए। कौन कौन बताएगा करंट ईयर प्रोसीजरल वर्क क्या है? करंट ईयर प्रोसीजरल वर्क क्या क्या होते हैं? चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए सर कि करंट ईयर प्रोसीजरल वर्क जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं। फॉर्म 15 सीए सीबी एक करंट ईयर प्रोसीजरल वर्क है या बैक एंड प्रोसीजरल वर्क है, प्रीवियस ईयर प्रोसीजरल वर्क है? फॉर्म 15G15H अगर हमारे किसी क्लाइंट का, सीनियर सिटीजन का फाइल करना है बैंक में, तो वो करंट ईयर प्रोसीजरल वर्क है, प्रीवियस ईयर प्रोसीजरल वर्क है? किसी का 148 में लिटिगेशन का स्क्रूट नोटिस आया है,
किसी का 148 का प्रोसीजरल वर्क लिटिगेशन नोटिस आए हैं फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, वो करंट ईयर वर्क है या प्रीवियस ईयर वर्क है? असेसमेंट ईयर 22-23 का या असेसमेंट ईयर 2021 के इस समय शो कॉज नोटिस आए हैं। ऑल्दो वो सारे शो कॉज नोटिस 31 मार्च 2026 से पहले आए हैं, बट अब जो 148 आएंगे जून 2026 में, वो जो 148 आएंगे वो करंट ईयर वर्क है या प्रीवियस ईयर वर्क है? तो देखिए, करंट ईयर वर्क के कुछ एग्जांपल्स है जो हम एडवांस टैक्स पे करेंगे फॉर टैक्स ईयर 26-27। मैं अब यहाँ पे आपको डिफरेंसेस नहीं समझाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्या है, टैक्स ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबको ये सारी चीजें पता है। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स नाउ। हम अप्रैल 26 में आ चुके हैं। अब एक्ट शुरू हुए हुए 11 दिन हो चुके हैं। तो जो टैक्स ईयर 26-27 से रिगार्डिंग में है, वो सारा का सारा करंट ईयर वर्क है, जैसे कि टीडीएस का वर्क, टीसीएस का वर्क, एडवांस टैक्स का वर्क। फॉर्म 121 इज 15G15H। फॉर्म 145, फॉर्म 146, ये सारे करंट ईयर वर्क है। जो इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करेंगे वो ऑब्वियस सी बात है, वो असेसमेंट ईयर 26-27 की करेंगे इस साल, और वो चलेंगे पिछले एक्ट की तरह, ओल्ड एक्ट 1961 का एक्ट। फिर आता है लिटिगेशन रिलेटेड वर्क। लिटिगेशन रिलेटेड वर्क एक प्रीवियस ईयर वर्क है, पिछले सालों का है। जो रीअसेसमेंट खुलेंगे, जो स्क्रूटनी खुलेंगे, वो पिछले सालों की खुलेगी। जो भी टैक्स ईयर 26-27 की जो टैक्स ईयर का वर्क, लिटिगेशन रिलेटेड वर्क होगा, वो ही न्यू एक्ट में आज की डेट में करना होगा, इररिस्पेक्टिव प्रोसीजर आज शुरू हुआ है। फॉर एग्जांपल 143(2), अगर 143(2) जून में आएगा, अभी 2026 में, जून 2026 से पहले पहले 143(2) आएगा, वो कौन से के लिए आएगा? वो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आएगा। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जो 143(2) आएगा, वो पुराने एक्ट में होगा। जो टैक्स ईयर 26-27 में आएगा वही नए एक्ट में होगा। आगे चल के सपोजिंगली सर्च हुई है नेक्स्ट ईयर 27 में, सर्च हुई है पिछले 6 सालों का जो वो खोल रहे हैं, तो एक ईयर ही होगा जो नए एक्ट में होगा, बाकी सारे ईयर के ओल्ड एक्ट में गवर्न करेंगे। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज ओनली रिलेटेड टू लिटिगेशन वर्क आई एम सेइंग। आप लोगों को देखिए, मेरे को जो सबसे पहले कंफ्यूजन आती थी कि यार ये कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा कि नोटिस आगे के सालों में नए एक्ट में आएंगे और चलेगा पीछे। लेकिन बहुत ही सिंपल है। मैं इसके पीछे की टेक्निकल लैंग्वेज आपको नहीं समझा पा रहा हूं। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो 536 सेक्शन पढ़ेगा, उसका क्लॉज सी के अंदर लिखा हुआ है, चीजें सारी है। सिंपल सी बात उसमें ये लिखी हुई है कि जो टैक्स ईयर 26-27 से रिलेटेड स्क्रूटनी, लिटिगेशन, सर्च सीजर, रीअसेसमेंट, इंटीमेशन, जो भी चीजें होगी, वो सारी नए एक्ट में होगी। तो इसका मतलब जो भी यहां पे लिटिगेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए न्यू एक्ट एप्लीकेबल अभी कुछ सालों बाद ही आएगा। अभी तक आप ओल्ड एक्ट के हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन प्रोसीजरल वर्क से रिलेटेड में आपको करंट ईयर के रिगार्डिंग में आपको न्यू एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होगी। यहां तक समझ आ गया? तो मैंने अभी आपको तीन चीजें यहां पे बताई है, देखिए, तीन चीजें बताई है। ये होगा एज पर न्यू एक्ट। करंट ईयर के जो प्रोसीजरल वर्क होंगे वो सारे के सारे न्यू एक्ट में होंगे। जो अभी रिटर्न भरेंगे हम, जुलाई अगस्त सितंबर में जो रिटर्न भरने वाले हैं,
वो सारे के सारे ओल्ड एक्ट के लिए होंगे। क्यों? क्यों ओल्ड एक्ट के लिए होंगे? रीजन बीइंग वो होंगे असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। और जो लिटिगेशन रिलेटेड वर्क जो आएगा, जैसे अभी स्क्रूटनी आ रहा है, रीअसेसमेंट वो आ रहा है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, या फिर वो आ रहा है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। ये जो आ रहे हैं ये सारी की सारी चीजें होंगी एज पर ओल्ड एक्ट। जब टैक्स ईयर 26-27 का आएगा तभी वो न्यू एक्ट में होगा। इसके रिगार्डिंग फॉर्म से फॉर्म 35 जो सीआईटी अपील का फॉर्म होता है वो हो गया फॉर्म 99। फॉर्म 99 वुड बी एप्लीकेबल जब आप अपील फाइल करेंगे फॉर टैक्स ईयर 26-27 की। असेसमेंट ईयर 26-27 की अगर आपने अपील फाइल करी है तो आपको फॉर्म 35 ही भरना है। आईटीएटी के लिए फॉर्म 36 ही भरना है। क्रॉस अपील के लिए फॉर्म 36A ही भरना है। टैक्स ईयर 26-27 के लिए आपको फॉर्म 35 की जगह फॉर्म 99 हो गया है, वो भरना है। उसमें पहले 17 क्लॉजेस थे, अब 29 क्लॉजेस हो गए हैं। आईटीएटी के लिए जो पहले फॉर्म 36 था वो फॉर्म 115 हो गया है, क्लॉजेस बढ़ गए हैं। बट क्लॉजेस बढ़ गए हैं, बट मेजरली क्लॉजेस जो है वो सारे प्रीफिल भी हो गए हैं। फॉर्म 36 से किसी को क्रॉस अपील फाइल करनी है उसके लिए 116 हो गया है। तो ये मैंने अभी आपको तीन चीजें बताई प्रोसीजरल के लिए न्यू एक्ट, अभी जो इस साल रिटर्न फाइलिंग करेंगे उसके लिए ओल्ड एक्ट, लिटिगेशन रिलेटेड वर्क। तो रिटर्न फाइलिंग के लिए नेक्स्ट ईयर से हमें न्यू एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, इस साल हमें ओल्ड एक्ट फॉलो करना है। और लिटिगेशन रिलेटेड वर्क के लिए हमें आगे के कुछ साल ओल्ड एक्ट ही फॉलो करने होंगे। करंट ईयर न्यू एक्ट, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर दिस ईयर ओल्ड एक्ट, नेक्स्ट ईयर न्यू एक्ट, एंड लिटिगेशन रिलेटेड वर्ड ऑल ओल्ड एक्ट। और ये सारी चीजें कहाँ लिखी है? 536 में। टोटल 22 क्लॉजेस है और इतने कॉम्प्लेक्स है, इतने कॉम्प्लेक्स है कि मैंने जब उसे पढ़ा तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। उसमें ऐसी ऐसी सिचुएशंस लिखी है कि अमेलगमेशन आज की डेट में हुआ, प्रीवियस ईयर लॉसेस है वो सारे कैसे आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड करने हैं, लिटिगेशन रिलेटेड चीजें काफी लिखी हुई थी। अगर किसी को ये सारी चीजें देखनी है तो देयर आर 22 सब क्लॉजेज इन 536 जो कि रिपील एंड सेविंग एक्ट का है। बट एक ही एसेंस है, एक ही एसेंस है, वो एसेंस है नो पॉलिसी चेंज। मेजर कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगा। सारी की सारी जो चीजें होंगी वो सारी की सारी जो चीजें होंगी वो रिलेटेड टू असेसमेंट्स होंगी। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज आई है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो ये है कि इस एक्ट में जो नया एक्ट 2025 में आया है, इस एक्ट में ये चीज बोली गई कि अगर अगर आप लोगों को इन 22 क्लॉजेस के बाद भी ऐसी कोई चीज मिल गई जिसका रिपील एंड सेव नहीं हो पाया, देन देर इज अ सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट। अब मैं थोड़ा टेक्निकल हो गया हूं। सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट है जो कि ये कहता है, जो रिपील एंड सेविंग के बारे में बताता है और बोलता है कि जो भी राइट्स ऑब्लिगेशंस है जो न्यू एक्ट में आएंगे वो कैरी फॉरवर्ड होंगे ओल्ड एक्ट के। और वही सेम प्रोपोजिशन इनकम टैक्स लॉ ने भी फॉलो करी है। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका मतलब आपका कोई भी, चाहे रिफंड हो, कोई एडजस्टमेंट हो, चाहे प्रीवियस डिमांड हो, या आपने कोई फॉर्म फाइल कर रखा हो, जैसे कि अभी ज्यादातर लोगों ने ट्रस्ट के फॉर्म्स फाइल करे होंगे, फॉर्म 10AB रिन्यूअल के, तो वो सारे के सारे फॉर्म्स जो है वो अब आपको नए एक्ट में फाइल नहीं करने हैं। एंड दैट इज सेम एप्लीकेबल फॉर द डिपार्टमेंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स
फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी पहले के सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस आए हुए हैं विच इज एप्लीकेबल राइट नाउ, जो नए एक्ट में के लाइन में चल रहे हैं, तो डिपार्टमेंट को उनको वापस विड्रॉ करके नए सर्कुलर इशू करने की जरूरत नहीं है। जो लोग यहाँ पे लिटिगेशन की प्रैक्टिस करते हैं दे मस्ट बी नोइंग कि एक सर्कुलर था सीबीडीटी का 14 ऑफ 1955, वो भी एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि वो सेविंग क्लॉज ऑफ 297 ऑफ द 1961 एक्ट से उसको सेव किया गया, और अब 536 से सेव किया हुआ है। वो 1922 का सर्कुलर है, 1922 एक्ट से निकला हुआ सर्कुलर है, जो ये बोलता है कि इन केस अगर हमारे क्लाइंट ने कोई भी डिडक्शन गलत ले ली है तो इट इज द और वो बोनाफाइडी ली है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर टू अलाउ इट एंड टू करेक्ट इट। जस्ट बिकॉज जो टैक्स पेयर है वो नॉट अवेयर ऑफ द लॉ है, तो इस वजह से आप उसके साथ मैलाफाइड एक्शन नहीं ले सकते। ये चीज मेरे लिए अभी अभी एप्लीकेबल हुई। मेरे क्लाइंट था, उसने 80C की डिडक्शन गलत ले ली थी। उसने 80C की डिडक्शन ले ली थी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। उसने एक एग्रीकल्चर लैंड परचेज करी और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसने 80C में ले ली। जब उसकी स्क्रूटनी हुई, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर ने पूछा 80C में क्या है, उसने कहा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो ऑफिसर ने कहा कि नहीं, एग्रीकल्चर लैंड की स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट अंडर 80C। तो उसने शो करा कि ठीक है, मेरे बच्चों की फीस है, स्कूल फीस ऑफ माई चिल्ड्रन, उसको कंसिडर कर लो। तो बिकॉज ऑफ 1955 सर्कुलर दे कंसिडर दैट। तो मीनिंग देयर बाय 536 सेक्शंस के अंदर, 500 सेक्शन 536 में सेविंग एंड रिपीलिंग क्लॉजेस के अंदर 22 क्लॉजेस है जो आपको ट्रांजिशनल सिचुएशंस के बारे में बताते हैं। अब मैं एक बारी आता हूं कि जो रिटर्न फाइलिंग का कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेमिनार है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ टैक्स प्रोफेशनल, एग्जीक्यूटिव की क्या एग्जीक्यूटिव की क्या एक्सपेक्टेशंस है? मेरे को चैट बॉक्स में बताइए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से एग्जीक्यूटिव की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। व्हाई दे वांट चार्टर्ड अकाउंटेंट इनटू द इकोनॉमी? चैट बॉक्स में बताइए मेरे को क्या। ऐसे नहीं हो सकता ये। राजेंद्र कुमार जी का क्वेश्चन एक आया है। वो ये कह रहे हैं कि ये सब करने की क्या जरूरत थी जब हर साल अमेंडमेंट होती है। तो देखिए राजेंद्र जी, इस एक्ट में कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं आया है, वो ऑब्वियसली फाइनेंस एक्ट में आता है। बट रीनंबरिंग करने की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि इफ दे वांट टू शफल फ्यू सेक्शंस तो उनके पास स्कोप नहीं था। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल पीजीबीपी के जो सेक्शंस है, सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 डीडीबी तक थे। सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 डीडीबी वाले जो सेक्शंस है, अगर डिपार्टमेंट को उसके अंदर सर्टेन चेंजेस करने हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को उसके अंदर सर्टेन चेंजेस करने हैं, तो उनके पास स्कोप रह गया, स्कोप नहीं बचा। तो उनको उसको सबको रीशफलिंग करना पड़ा। और क्या चेंजेस करे? फॉर एग्जांपल सेक्शन 29 ऐड किया। सेक्शन 29 ऑफ द न्यू एक्ट प्रोवाइड्स जो एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स है, ये मैं 2025 की जो मेरी एक्ट का सेमिनार था मैंने उन सब में बताया था। सेक्शन 29 के अंदर एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस थे, तो आज की डेट में जो अंडर ओल्ड एक्ट सेक्शन 3614, 3615A, 3615, सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 7 ग्रेचुटी से रिलेटेड, सेक्शन 40 सेक्शन 43B में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का डिसअलाउंस,
ये जितने भी प्रोविजंस थे इंप्लॉय रिलेटेड वो सारे इन्होंने अब नए सेक्शन 29 में डाल दिए है, ग्रुपिंग करी है। सेक्शन 31 बैड डेप्ट के लिए है। तो पहले जो बैड डेप्ट के प्रोविजंस थे वो सेक्शन 3617, 3617A, 3618, ये सारे बैड डेप्ट के प्रोविजंस थे, उनको सेक्शन 31 में डाल दिया। अगर उनके पास वो पहले वाले में ही उसको रीग्रुपिंग रीनंबरिंग करते तो उनके पास स्कोप नहीं था सेक्शन 28 से सेक्शन 44 DD में, उसमें कहां से रीशफलिंग करते और नए नए सेक्शन जंबल अप हो जाते। तो एक सेक्शन होता है सेक्शन 115, उसके अंदर पता नहीं मोर देन 100 सेक्शन थे। क्यों था 115 के अंदर मोर देन 100 सेक्शन? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर का 115 एक फेवरेट सेक्शन था, एक फेवरेट नंबर था 115। तो इस वजह से ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब उन सबको उन्होंने रीनंबरिंग करा और उनके पास स्कोप रहा ये सब चीजें करने का। तो ये रीजन था, इसको रीनंबरिंग उनको करना पड़ा। सर का क्वेश्चन है कि इस चेंजेस करके होगा क्या, उससे इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा? सर देखिए, जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है, मैं एग्जांपल देके बताता हूं। यूके की इकोनॉमी है, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी है, ये सारी इकोनॉमीज, यूके ने 94 से लेके 97 तक चेंजेस करे, ऑस्ट्रेलिया ने 2010 में चेंजेस करे। जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनको जो लॉज है, टैक्स लॉज है, उसमें कंटिन्यूस चेंजेस करने और उनमें कंटिन्यूस सिंप्लीफिकेशन लेके आना है, क्योंकि उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज जनरेट हो रही थी। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल बजट 21 और बजट 22 में इतने सारे प्रोविजंस, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, प्रोवाइजोस ऐड हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। कौन कौन से असेसमेंट ईयर्स की टाइमलाइन बढ़ा दी थी? एक्ट इतना ज्यादा बल्कि होता जा रहा था। एक नॉर्मल प्रोविजन था और एक था कि फॉर दिस असेसमेंट ईयर द प्रोविजन एक्सटेंड टू दिस ईयर, फॉर दिस पीरियड। तो इतना बल्कि एक्ट होने से, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ने से, ट्रस्ट के प्रोविजंस इतने कॉम्प्लेक्स होने से, सेक्शन 10 के प्रोविजन इतने कॉम्प्लेक्स होने से, टीडीएस के प्रोविजन इतने कॉम्प्लेक्स होने से, इन्होंने ये सोचा कि बेटर है कि इसको सिंप्लीफाई करें। और सिंप्लीफिकेशन का तरीका सिर्फ यही था कि नए एक्ट को लेके आना। अगर वो पुराने एक्ट को ही रीनंबरिंग कर देते, बेसिकली उन्होंने करा ही पुराने एक्ट को रीनंबरिंग है, तो बस उन्होंने चेंज कर दिया 61 से 20, वो कर दिया 25। खैर एनीवेज, मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि हमारे हमारे से क्या एक्सपेक्टेशंस थी सरकार की। देखिए, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ टैक्स प्रोफेशनल, कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट थी पहले के टाइम पे वो ये होती थी कि हमारे क्लाइंट की सर्टेन इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए होती है। तो टैक्स पेयर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता था। लेकिन आज की डेट में वो जो रिक्वायरमेंट है वो रिलेटिवली डाइल्यूट हो गई है। क्यों हुई है डाइल्यूट? वो डाइल्यूट इस वजह से हुई है, बहुत ही बेसिक एंड सिंपल रीजन है, क्योंकि दे डोंट वांट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोफेशनल लॉ। उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आ गई है। कैसे आ गई है? वाया एसएफटी टूल 285 BA, एआईएस में जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी टीडीएस टीसीएस के थ्रू आ रही है, जो कि रिटर्न फाइलिंग से बहुत पहले आ जाती है। दे वांट दैट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन रादर देन दे वांट
कि चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको असिस्ट करे फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, वो नहीं उनकी रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी तक वैसे टैक्स ईयर 26-27 के फॉर्म्स नहीं आए हैं। अभी फॉर्म्स आ गए हैं फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 के। मैंने वो फॉर्म्स देखे नहीं है, बट टैक्स ईयर 26-27 के ऑब्वियसली फॉर्म नेक्स्ट ईयर आएंगे। और वो जो फॉर्म्स होंगे, उन फॉर्म्स में ये होगा कि जो 26 टैक्स ईयर 26-27 की रिटर्न्स होगी वो सिर्फ नंबर फाइलिंग से रिलेटेड नहीं होंगी। दे डोंट वांट नंबर फ्रॉम अस, दे सिंपली वांट चार्टर्ड अकाउंटेंट टू एक्सप्लेन देम द डिफरेंस इफ इट इज देयर। तो सिमिलरली जैसे जीएसटी में 99C का कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें टेबल के डिफरेंसेस बताने होते हैं, उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है 2A में, और हमें डिफरेंसेस बताने होते हैं, वैसे ही आगे चल के इनके पास भी मल्टीपल सोर्स से इंफॉर्मेशन आ रही है। दे डोंट वांट चार्टर्ड अकाउंटेंट टू प्रोवाइड देम इंफॉर्मेशन, दे ओनली वांट कि इफ देयर इज अ रिकंसिलिएशन डिफरेंस, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको वो बता दीजिए क्यों भाई है, दैट इज इट। तो एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस विल बिकम द वर्क ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फ्यूचर। इन फ्यूचर मीन्स इन इमीडिएट फ्यूचर। इस इनकी तो अब मैंने भी आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताई कि क्या रिटर्न फाइलिंग जो है उसमें डिफरेंसेस है। क्या रिटर्न फाइलिंग जो है वो अब नंबर फाइलिंग से हटके वो हो गए की डिफरेंसेस पे। अब हम आते हैं जो 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 टीडीएस और टीसीएस में चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। टीडीएस और टीसीएस के चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे सर मैं टीडीएस और टीसीएस के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिटिगेशन के बारे में बताऊंगा कि रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स में क्या ऐसे चेंजेस है। मैं आपको चैरिटेबल ट्रस्ट के चेंजेस के बारे में थोड़ा बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा फॉर्म 3CD के चेंजेस के बारे में, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस आए हैं उनके बारे में बताऊंगा। मैं आपको की चेंजेस बताऊंगा जो क्लाइंट को हमें एडवाइस करने होंगे, क्लाइंट को हमें क्या क्या चेंजेस एडवाइस करने हैं, जो जो उनको सिस्टम डेवलपमेंट करनी है। मैं आपको इन इन चीजों के बारे में बताऊंगा जो हम आज क्लाइंट को ईमेल करके बता सके कि देखिए ये चेंजेस आए हैं, आप ये इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। तो अब हम आते हैं टीडीएस और टीसीएस के चेंजेस में। तो देखिए टीडीएस अभी जो Q4 जाएगा, Q4 ऑफ 2026 जो जाएगा वो ऑब्वियसली ओल्ड एक्ट के थ्रू ही जाएगा। जो हमारे अभी फॉर्म्स है वो वही रहेंगे। जो Q1 ऑफ 2026 होंगे उसमें न्यू फॉर्म्स होंगे। तो सीबीडीटी ने एक क्वेश्चन निकाला। सीबीडीटी के एफएक्यूज के हिसाब से उन्होंने ये सबसे पहले बोला है, उन्होंने हम प्रोफेशनल्स के लिए ये बात बोली है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो 1 अप्रैल 2026 के बाद हो रही है, और वो होते हुए अगर आपने गलत सिस्टम गलत सेक्शन कोड करेंगे तो उसमें सिस्टम वैलिडेशन एरर आएगी। और सिस्टम वैलिडेशन एरर आने के बाद अगर आप उसको सोचेंगे कि ये फाइल हो जाए तो वो कभी फाइल नहीं होगी। और अगर वो आपने मैन्युअली गलती से फाइल कर दी तो डिडक्टी के डिडक्टी के 26AS में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ करेक्शन स्टेटमेंट ही फाइल करनी होगी, और वो एज सून एज पॉसिबल फाइल करनी होगी। तो ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि कोई भी टीडीएस पुराने सेक्शंस के थ्रू नहीं जाएगा, आपको नया सेक्शन कोड करना पड़ेगा। अब टीडीएस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि पेमेंट रिसीव और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आपका रिसीव और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर बिफोर 31 मार्च 2026 में हो जाता है तो फिर आपको ओल्ड एक्ट लगेगा। एंड इफ इट इज आफ्टर 1 अप्रैल 2026 तो फिर आपको न्यू एक्ट के हिसाब से उसमें टेबल्स के हिसाब से
आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। एक इसमें मैंने बताया है आपको फॉर लोअर डिडक्शन के लिए सेक्शन 197 की जो अब आपको सर्टिफिकेशंस लेने होंगे। हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉर टैक्स ईयर 2026-27 के लिए लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लेने होंगे। वो अब लेने होंगे सेक्शन 395 में। ये एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो गया सर ये। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। इसमें बजट 2026 का बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। क्या चेंज आया है कि अब पहले एज असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फेक्शन होना होता था, उसको सारे डॉक्यूमेंटेशन देके कंप्यूटेशन देके उसको सेटिस्फेक्शन नोट करके फिर 197 का सर्टिफिकेट देता था। बट बजट 2026 में चेंज आया जो सेक्शन 395 है फॉर टैक्स ईयर 26-27 के लिए। आपको सर्टेन कंडीशन सर्टेन थिंग्स उनको देनी है और उनको मैकेनिकली उसे अप्रूव करना है, उसे अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं डिस्क्लोज करने की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है इन बजट 2026 जो कि एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2026 से। तो अब आपको वो फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट करना होगा। और अगर आपने फुलफिल कर दी है उसके अंदर की कंडीशंस तो आपको ऑटोमेटिकली 197 जो है या 395 जो नए एक्ट का है वो ग्रांट हो जाएगा। तो दैट इज अ वेरी बिग रिलीफ फॉर द प्रोफेशनल्स। देखिए मेरे को यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिकल बातें भी करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली आज की डेट में भी असेसिंग ऑफिसर डायरेक्टली करता नहीं था, उसको सर्टेन हमें उसको पैसे दे के आने होते थे तभी 197 का सर्टिफिकेट्स मिलते थे। लेकिन अब अभी भी सिचुएशन होनी तो वैसी ही है, लेकिन एज अ टैक्स प्रोफेशनल यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि अब आपको सर सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिंपली मेरे डॉक्यूमेंटेशन देख के मेरे को ग्रांट कर देना है, दैट इज इट। तो टीडीएस के सर्टिफिकेशंस में चेंजेस आए हैं, उसकी एक्ट की लैंग्वेज जो है वो चेंज हो गई है। अब एक है चालान कौन सा डिपॉजिट करना है विद रिगार्ड टू टीडीएस। टीडीएस का अगर हम देखेंगे तो अभी 7th को हम नेक्स्ट मंथ की 7th को हम चालान डिपॉजिट करते थे। लेकिन मार्च का चालान हम डिपॉजिट करते हैं 30 अप्रैल को। एवरी मंथ का चालान नेक्स्ट 7th को होता था, मार्च का होता है 30 अप्रैल को। तो मार्च 26 का जो अभी चालान डिपॉजिट होगा 30 अप्रैल को वो पुराने एक्ट के थ्रू ही होगा। लेकिन 7 मई को जो चालान डिपॉजिट होगा वो पहली बारी नए एक्ट के थ्रू चालान डिपॉजिट होगा। तो उस चीज के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा कि एक्ट अंडर 2025 एंड देन आपको चालान डिपॉजिट करना होगा। उसमें 1961 का सेलेक्ट करके चालान नहीं डिपॉजिट करना। तो नेक्स्ट 7 मई को आपको पहली बारी टीडीएस का चालान डिपॉजिट करना होगा अंडर द न्यू एक्ट। अब टीडीएस की रिटर्न कब जमा करनी होगी? टीडीएस की जो रिटर्न है वो फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ टीडीएस टीसीएस की जो रिटर्न होती है 27EQ टीसीएस की रिटर्न आपको सबको पता है। तो इसकी जनवरी टू मार्च क्वार्टर की जो रिटर्न फाइलिंग डेट है वो है 31 मई 2026। 31 मई 2026 ये हमें ओल्ड एक्ट के हिसाब से ही फाइल करना है, आपको उसमें 1961 का एक्ट सेलेक्ट करके फाइल करना है। लेकिन जो फर्स्ट क्वार्टर की रिटर्न होगी टीडीएस की जो 31 जुलाई 2026 को फाइल होगी उसमें आपको न्यू एक्ट सेलेक्ट करके फाइल करना है। और उनके फॉर्म नंबर जो है जो टीडीएस का है वो 138 है और नॉन टीडीएस वाले फॉर्म 140 है। जो 26Q है वो 140 हो गया है। तो आपको 140 फॉर्म भरना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी ये अपने स्टाफ के थ्रू करवा रहा है तो आपको उसको डेफिनेटली डबल और ट्रिपल चेक करके ही फाइल करनी है शुरू के फ्यू क्वार्टर्स की रिटर्न। बहुत डिफिकल्ट होगा आपको ये देखना कि जो 194C, 194J, 194I, 194H इन सबकी जो आदत पड़ी हुई थी उन सबको चेंज करके टेबल नंबर 1 के सीरियल नंबर याद करने पड़ेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये एक्ट अभी से एप्लीकेबल हो गया है, आप सब लोग
अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबको ईमेल करिए, सबके अकाउंटेंट उनमें मार्क होने चाहिए, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनको बताना कि ये आपके मेन सेक्शंस थे, जब इसमें इसमें कन्वर्ट हो गया है, मैंने ऐसा काम किया है। हमें सारे सारे अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करना। मेरे साथ मैं अब एज एन एडवोकेट काम करता हूं, लेकिन मेरे साथ के जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स हैं उन सबको मैंने इंश्योर किया है कि वो सब अपने क्लाइंट्स को ईमेल्स डाले, ड्राफ्ट करके दे। तो आपको एक चार्ट बना के एक ईमेल ड्राफ्ट करनी है अपने सारे क्लाइंट्स को, जिससे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर आप ही उनका टीडीएस का काम कर रहे हैं देन इट इज फाइन, लेकिन अगर उनके अकाउंटेंट फाइल कर रहे हैं तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ टैक्स प्रोफेशनल, एज अ एक्सपर्ट पर्सन। अब देखिए, जो चेंज आया है, जो 1 अप्रैल 2026 से आया है, वो ये आया है कि जो चालान कम टीडीएस स्टेटमेंट मैकेनिज्म से, जो चालान कम टीडीएस स्टेटमेंट मैकेनिज्म से, अरुण जी, है कि क्या आप ईमेल शेयर करेंगे? मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। मैं आपको वो ईमेल शेयर करूंगा जो आपको अपने क्लाइंट्स को देनी है। सर्टेन चालान कम टीडीएस स्टेटमेंट से, जैसे कि फॉर्म 26 QB, फॉर्म 26 QC, जो प्रॉपर्टी परचेज करते हुए आप सबने भरे हैं, ये वाले जिसके लिए टैन की जरूरत नहीं है, तो उनके रिगार्डिंग में एक नया फॉर्म आ गया है, फॉर्म 141, जिसके अंदर ऑलरेडी ये जो चार पांच पहले चालान कम टीडीएस सर्टिफिकेट से उन सबको मर्ज करके फॉर्म 141 आ गया है। और ये आपको फाइल करना है आज ही से। जब भी टीडीएस, अगर 1 अप्रैल 2026 के बाद से जो भी टीडीएस काटा है उनके लिए, मींस, काटने का मतलब, मेरी लैंग्वेज का मतलब ये था कि अगर क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये 31 मार्च 2026 से पहले हो जाता है तो ओल्ड एक्ट अप्लाई होगा। बट उसके बाद के जितने भी, अगर पेमेंट जारी है, बिल्डर्स को पेमेंट जारी है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो वो आपको नए 141 में फिल इन करना होगा। टीडीएस के रिगार्डिंग में आपके कोई, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए चैट बॉक्स में। सर, मेरे को बहुत सारे लोगों को मेल करनी पड़ेगी। अरुण जी कह रहे हैं कि ईमेल कर दीजिए मेरे को इन सब में। मैं आपको अपनी मेल आईडी शेयर कर दूंगा, आप सब जो जो भी मेरे को मेल कर देंगे मैं उनको ईमेल कर दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल मत घबराइए। मैं आपको ईमेल शेयर करूंगा जो आपको अपने, दिस इज द प्रैक्टिकल इनसाइट, यही मेरा पर्पस है कि आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ टैक्स प्रोफेशनल की वर्किंग कैसे इंप्रूव करो। सिर्फ नॉलेज देना इज नॉट इनफ। जब आप ईमेल करेंगे दैट इज एन एक्शन, और एक्शन से ग्रोथ होती है, नॉलेज से ग्रोथ नहीं होती है। नॉलेज प्लस एक्शन से ग्रोथ होती है। तो ठीक है, टीडीएस से रिगार्डिंग में अगर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को बताइए। टीडीएस से रिगार्डिंग में देखिए, कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, लोगों का क्वेरी आई है। देखिए, कैरी फॉरवर्ड करने में कोई इशू नहीं आएगा। 2 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड इजीली कर सकते हैं। इसका मैंने जवाब पहले दे दिया था राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के टाइम पे, कि जो भी आपके राइट्स है वो रहेंगे। कैरी फॉरवर्ड में कोई नहीं आएगा। ट्रेसेस डिमांड जो है, ट्रेसेस डिमांड के लिए क्वेश्चन आया है। देखिए, जो भी डिमांड के रिगार्डिंग में पॉइंट्स थे, जो पहले वाले एक्ट के अंदर जितने टाइम तक आप उसको सेट ऑफ कर सकते थे, नए एक्ट में कोई पॉलिसी चेंज नहीं है, आप उतने ही टाइम तक सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर पहले एक्ट में आप 2 साल तक सेट ऑफ कर सकते थे, अभी भी आप 2 साल तक सेट ऑफ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वो पीरियड इंक्लूड होगा जो ओल्ड एक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डिमांड आई है फॉर Q2
फाइनेंशियल ईयर 24-25, अगर ये 2 साल तक कर सकते हो तो फिर आप Q2 ऑफ टैक्स ईयर 26-27 तक आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसको आपको बिल्कुल वैसे ट्रीट करना है कि जैसे एक्ट चेंज ही नहीं हुआ है। टीडीएस आईटीआर में भी कैरी फॉरवर्ड होगा वैसे ही, आपके कोई भी राइट एंड ऑब्लिगेशंस नहीं हिले है। तो जैसे हम पहले आईटीआर में जो टीडीएस का सेक्शन होता था, आईटीआर में टीडीएस आता था, उसमें जिस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करते थे उसी तरीके से अब इसमें भी कैरी फॉरवर्ड होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो कोई भी अगर आपका टीडीएस में अंडर यूटिलाइज चीज है, वो आपकी आगे भी यूटिलाइज होगी, एक्ट में कोई चेंज आया ही नहीं है। अब देखिए कुछ कुछ जो और एक चेंज आपको करना है, वो करना है विद 1 अप्रैल 2026 के से रिगार्डिंग में। यहां पे अगर कोई एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज को जो सैलरी स्लिप्स दे रहे हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। जो पहले उसमें 80C लिखा होता था, वो 123, उनके सेक्शन नंबर चेंज होंगे। फॉर्म 16 है, उनके उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। तो उसके लिए आप लोगों को इनकम टैक्स नेविगेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फॉर्म्स का नेविगेटर है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। इनकम टैक्स फॉर्म्स का नेविगेटर अगले 2-3 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपको बार बार ही वो रेफर करना होगा। एआईएस, एआईएस अभी ही साइट पे 2 अवेलेबल हो जाएंगे। जो फॉर्म 26 एएस है वो हो जाएगा फॉर्म 168। फॉर्म 168 हो जाएगा। फॉर्म 168 में देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज आया है, जो फॉर्म 26 एएस में नहीं था। फॉर्म 168 में आपको करंट ईयर का प्रोसीडिंग्स एंड पेंडिंग ईयर की प्रोसीडिंग्स की डिमांड्स दिखेगी। तो अब आपको पुराने सालों की डिमांड फॉर्म 168 में ही दिखेगी, जो पहले फॉर्म 26 एएस में नहीं दिखती थी। पहले सिर्फ हमें करंट ईयर का टीडीएस दिखता था और हमें एआईएस एसएफटी की ट्रांजैक्शंस दिखती थी, उसके अलावा नहीं दिखती थी चीजें। अब हमें क्लाइंट को पहले ही दिख जाएगा कि अच्छा उसकी इतनी प्रीवियस आउटस्टैंडिंग डिमांड्स पड़ी हुई है और अभी करंट इतनी असेसमेंट्स चल रही है। तो ये एक चेंज आया है, दैट इज अ गुड चेंज। कुछ कुछ चेंज आए थे जो इनकम टैक्स रूल्स में आए थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये रेगुलेशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चेंजेस 1961 में भी, 1962 वाले रूल्स में भी वही थी, और अब जाके ऑलमोस्ट 65 सालों बाद जाके इन्होंने चेंजेस करे हैं। तो जो चिल्ड्रन अलाउंस थे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, पहले 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड मिलता था, वो 3000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड हो गया है। ये पर्सनल टैक्सेशन के चेंजेस है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो हमें अपने क्लाइंट्स को गाइड करने में इजी होगा। हॉस्टल अलाउंस जो पहले 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड थे, वो 9000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड हो गए हैं। फ्री मील्स जो पहले 50 रुपीज पर मील था, अब वो 200 रुपीज पर मील हो गया है। बट ये जो चीजें हैं, दीज आर ओनली एप्लीकेबल अंडर ओल्ड रिजीम। तो वर्चुअली इसकी लिमिट्स बढ़ा दी है, बट इनका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अब न्यू रिजीम में आ चुके हैं। बट हाँ, जो लोग अभी भी ओल्ड रिजीम में हैं, तो नाउ दे कैन स्ट्रक्चर देयर सैलरीज। या अगर आपकी फर्म्स में भी कोई ओल्ड रिजीम में है, तो आप उनकी स्ट्रक्चर सैलरी कर सकते हैं, और ये नई लिमिट्स उसमें डाल सकते हैं ताकि उनको बेनिफिट हो। निधि कुमारी जी, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये बहुत प्रोसीजरल चीज है कि वेबसाइट मतलब पोर्टल के अंदर कैसे होगा, ये मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है इसका जवाब दे पाना। ये मेरे को भी अपनी टीम से पूछ के आपको देना पड़ेगा। विष्णु
विष्णु जी का क्वेश्चन है कि अगर हम टैक्स ईयर को 26-27 बोलेंगे तो उससे पहले वाले साल को क्या बोलेंगे, 25-26 वाले ईयर को क्या बोलेंगे। देखिए, जो 25-26 वाला ईयर है वो प्रीवियस ईयर है और असेसमेंट ईयर 26-27 है। और अभी विष्णु जी जो ये ईयर शुरू हो गया ये टैक्स ईयर 26-27 है। तो आपको जो ईयर करंट ईयर कंप्लायंस के लिए आप इसे बोलेंगे टैक्स ईयर 26-27। और जो रिटर्न फाइलिंग वाली कंप्लायंसेस है उनके लिए आप इसे बोलेंगे असेसमेंट ईयर 26-27। जो प्रीवियस ईयर 25-26 है उसको आपको नॉर्मली वैसे ही बोलना है जैसे आप पहले एक्ट में बोलते थे। बट देर इज नो ओवरलैपिंग। बस हाँ ये होगा कि इस साल भी आपको टैक्स ईयर 26-27 बोलना है और आपको असेसमेंट ईयर भी 26-27 बोलना है प्रीवियस ईयर अंडर ओल्ड एक्ट कंप्लायंसेस करने के लिए। रोहित ग्रोवर जी का क्वेश्चन है क्या फ्री मील्स जो है वो न्यू रिजिम में भी है। देखिए रोहित जी, मेरे हिसाब से फ्री मील्स वाले प्रोविजन ओल्ड में ही है, न्यू में नहीं है। मैंने एक इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल देखा था जिसमें बोल रहे थे कि न्यू में आ गया है लेकिन वो न्यू में नहीं आया है, ये ओल्ड में ही है। और एक और ये डाउट था कि अगर पार्ट पेमेंट हो रखी है पिछले पिछले साल फॉर इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हो रखी है तो फिर जो फॉर्म 26 QB है वो कैसे भरेंगे। और एक कुछ पेमेंट हो रखी है तो सर आपको उस चीज के लिए अलग अलग फॉर्म्स भरने होंगे। जो पार्ट पेमेंट हो रखा है, जो भी पेमेंट क्रेडिटेड और पेड हो रखी है बिफोर 31 मार्च 2026 में, चाहे वो पार्ट पेमेंट है चाहे वो फुल पेमेंट है, आपको उसके लिए अलग फॉर्म भरना होगा जो ओल्ड एक्ट में होगा फॉर्म 26 QB। और अब के लिए जो उसके बाद के लिए उसके लिए आपको 141 अलग भरना पड़ेगा। तो आप ये समझ के चलिए आपके लिए ट्रांजिशन के लिए बिजनेस आ गया है। जो पहले आप एक एक फॉर्म के पैसे लेंगे अब आप दो फॉर्म के पैसे लीजिए। अब है सर्टेन परक्यूजिट वैल्यूएशन जो पर्सनल टैक्सेशन में है। ये एज पर ओल्ड और एज पर न्यू रिजिम दोनों के लिए है कि जो परक्यूजिट वैल्यू इन्होंने सर्टेन इंक्रीज करी है अंडर इनकम टैक्स रूल्स 2026। तो आप सबको याद होगा जो गिफ्ट्स मिलते थे पहले नॉन कैश अप टू 5,000 वो टैक्स फ्री होते थे। अब अप टू 15,000 टैक्स फ्री हो गए हैं परक्यूजिट्स नॉन कैश अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देते हैं। ऐसे ही कार जो है कार लीजिंग आप सबको याद होगा लेस देन 1600 cc जो पहले 1800 और 900 रुपीज होते थे पर मंथ। दीज आर पर मंथ चार्जेस। जो पहले पर मंथ चार्जेस इतने चार्जेस नहीं सॉरी इतने परक्विजिट्स आप अपनी सैलरी में ऐड करते थे अब उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है तो वो इफेक्टिवली 8,000 रुपीज हो गई है। ये पर मंथ चार्जेस पर मंथ परक्विजिट्स ऐड होंगे। And वैसे ही 1600 cc 1600 cc की इंजन अबव 1600 वाली जो कार है उसकी आज की डेट में परक्विजिट वैल्यू जो है वो इफेक्टिवली 10,000 हो गई है। तो इन्होंने फाइनली इन परक्विजिट्स वैल्यू को चेंज कर दिया बहुत सालों बाद। बट मैं हैरान हूं कि रिलेटिवली कम ही रखा है, दैट इज अ गुड थिंग। 3,000 रुपये पर मंथ का ड्राइवर की अगर इन्होंने वैल्यू रखी है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। 3,000 रुपये में मेड भी नहीं आती आज की डेट में। खैर, जोक अपार्ट, बट ये आपको पता होना चाहिए कि दीज आर वैल्यू विच हैज बीन इंक्रीज्ड। सर एलडीसी क्या होता है? धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, एलडीसी क्या होता है? देखिए धीरेन्द्र जी, आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो भी पेमेंट आपने करी है प्रॉपर्टी ने एनआरआई के को जो या तो पेमेंट आई है तो वो क्रेडिट या रिसीव पेमेंट जो है वो अगर 31 मार्च से पहले हुई है तो आपको ओल्ड एक्ट के हिसाब से भरना होगा। और अगर वो नहीं हो पाया
तो आपको न्यू एक्ट के हिसाब से भरना होगा। सिंपल सी बात यह है। अब उसके अंदर के सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस क्या है कि वो क्यों नहीं आ पाया, बिकॉज ऑफ ईरान वॉर, बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट, वो सारी चीजें कोई कंसिडर नहीं होगी। सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे कोई इक्विटी नहीं चलती है टैक्स लॉज में, कि सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस ये हो गए, ये बात इस लाइन तक हुई है तो आपको ओल्ड में है, इसके बाद हुआ है तो वो न्यू एक्ट में है। अब देखिए जो रिटर्न फाइलिंग डेट है वो आप सबको पता है कि बजट में चेंज हुआ है। मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा एक बारी फिर से रिव्यू करा दे कि बजट बजट के जो चेंजेस है वो आपको रिव्यू करा दे कि ये एप्लीकेबल होंगे फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ये पिछले साल की रिटर्न के लिए भी एप्लीकेबल है। ये चीजें क्या है वो कि अगर कोई एसएससी की पीजीबीपी इनकम है बट उसका टैक्स ऑडिट नहीं है तो उसको 31 मार्च तक की रिटर्न फाइल करनी है। तो इसका मतलब स्टैगर्ड मैनर में रिटर्न फाइलिंग होगी। जो इंडिविजुअल का केस है उसे 31 जुलाई तक फाइल करनी है। इंडिविजुअल का केस है उसे 31 जुलाई तक फाइल करनी है। ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो 30 नवंबर तक फाइल करनी है। और कंपनी और अदर एसएससी जिसका ऑडिट हो रहा है तो उसे 31 अक्टूबर तक फाइल करनी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, और 30 सितंबर तक उसे अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है। एक इस बजट में चेंज आया है कि आईटीआर के जो फॉर्म्स है, आईटीआर के जो फॉर्म्स है उसमें मैं बस एक बजट का टाइमलाइन बताना चाहता हूं कि वो कैसे इंक्रीज हो गया है। तो आज की डेट में आपको जो रिवीजन करने की पावर मिल जाती है वो मिल जाती है 12 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट टैक्स ईयर, मीनिंग देयर बाय टैक्स ईयर 26-27 है। तो इस टैक्स ईयर 26-27 को आप 31 मार्च 2028 तक आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, जो कि पहले आप 31 दिसंबर 2027 तक रिवाइज कर सकते थे। पहले आपको 9 मंथ्स मिलते थे रिटर्न रिवाइज करने की, अब आपको वो 12 मंथ्स मिलते हैं। बिलेटेड रिटर्न आप 31 दिसंबर 2027 तक आप फाइल कर सकते हैं। या अगर आपको इस साल की भी करनी है, असेसमेंट ईयर 26-27 की करनी है, तो आप 31 दिसंबर 2026 में आप फाइल कर सकते हैं। तो 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और अपडेटेड रिटर्न के लिए 48 मंथ्स हो गए हैं। ऑब्वियसली उसके लिए आपको एडिशनल टैक्स 60% तक देना पड़ेगा, सॉरी 70% तक देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने वॉलंटरी कंप्लायंसेस के लिए बहुत एफर्ट्स लिए हैं और उन्होंने अपनी आईटीआर जो है वो ऐसे डेवलप करी है। अब देखिए पैन के जो है, अगर आपको नए, दिस इज अ करंट ईयर कंप्लायंस, अगर आपको नया पैन अप्लाई करना है या पैन में कुछ चेंजेस करने हैं, अगर आपको पैन में सर्टेन चेंजेस करने हैं तो फिर आपको पैन में जो चेंजेस करने हैं वो आपको करने हैं करंट ईयर कंप्लायंस में। तो 1 अप्रैल 2026 के बाद से आपको ये आपके नए फॉर्म नंबर आ गए 93, 94, 95, 96। मैं आपको एक शीट शेयर करूंगा जो कि इनकम टैक्स नेविगेशन फॉर्म्स की है और वो आपको हेल्प करेगी। चाहे आपको पैन में चेंजेस करने हैं, चाहे आपको नया पैन अलॉट करना है, अब पुराने फॉर्म्स आर ओवर। और मैंने ऐसा सुना है कि आपके जो फॉर्म्स है, आपके जो पैन है वो डिजिटल पैन है और उनके अंदर सर्टेन क्यूआर कोड्स भी है। सर मैंने आपका, धीरेन्द्र जी, मैंने आपका ये क्वेश्चन लिया था, आपका लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग में था। अगर आपका लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट टीडीएस जो है वो लाइबल टू बी डिडक्टेड बिफोर 31 मार्च 2026 है तो आपको ओल्ड एक्ट में जाना है, अदरवाइज आपको न्यू एक्ट में जाना है। इसमें कोई इक्विटी नहीं लगानी है। अब हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमारे क्लाइंट्स का जो फॉर्म, जो सीनियर सिटीजन है या बैंक से जो एफडीआर इंटरेस्ट जिनका डिडक्ट हो रहा है और अगर टैक्सेबल इनकम टैक्स नहीं पेबल बन रहा है, तो अब से आपको फॉर्म 121 भरना है। दिस इज द न्यू चेंज फॉर टैक्स ईयर 26-27। तो 1 अप्रैल 2026 के बाद आपको फॉर्म 121 भरना है। ऐसे ही
फॉर्म 15 CA-CB वो अब भर गया, वो अब हो गया है रिप्लेस फॉर्म 145 एंड 146 से। इसका बहुत ही सिंपल है, अगर आपने रेमिटेंस, कोई भी रेमिटेंस बिफोर 31 मार्च 2026 से पहले पहले हुई है तो उसका आपको फॉर्म 15 CA-CB ही भरना है। और अगर आपकी रेमिटेंस 1 अप्रैल 2026 के बाद हुई है तो फिर आपको 145 146 भरना है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर किसी क्लाइंट ने, मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूं, अगर किसी सीए ने, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फॉर्म 15 CB सर्टिफाई कर दिया है, ये सोच के कि उसका क्लाइंट पेमेंट मेड करेगा 30 मार्च 2026 में, देखिए ये प्लीज ध्यान से सुन लीजिए ये वाली चीज, क्योंकि दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल चेंज और हो सकता है यहाँ पे काफी मेंबर्स है, हो सकता है कि उनमें से कुछों को ये प्रॉब्लम आए। अगर आपके क्लाइंट ने, आपने कोई मार्च में आपने फॉर्म 15 CB सर्टिफाई कर दिया कि हमें इतनी पेमेंट मेड करनी है, और वो मेड करनी थी बिफोर 31 मार्च 2026 को, बट बिकॉज ऑफ सम इवेंट वो नहीं हो पाई और वो हुई 1 अप्रैल 2026 को, तो आपको नया फॉर्म 146 फाइल करना पड़ेगा। पुराना फॉर्म 15 CB नहीं एक्सेप्ट होगा। वो जब रेमिटेंस बैंक के पास जाएगा आफ्टर 1/4/2026, चाहे आपने फॉर्म 15 CB उसका उस पेमेंट का भरा हुआ था, लेकिन अब आपको नया फिर से 146 भरना होगा। ये बाकी सब चीजों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये इसी फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। बाकी और 50 चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ले लिया, वो आगे भी एप्लीकेबल रहेगा। आपने न्यू रिजिम सेलेक्ट कर लिया, वो आगे भी एप्लीकेबल रहेगा। आपने ATIAC के, आपने स्टार्टअप के सर्टिफिकेशंस भरे, वो आगे भी एप्लीकेबल रहेंगे। लेकिन ओनली फॉर फॉर्म 15 CA-CB जो मैंने देखा कि अगर आपने फॉर्म 15 CB भर दिया, सर्टिफाई कर दिया, और वो पेमेंट नहीं हो पाई इन मार्च बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, जैसे कि यहाँ पे धीरेन्द्र जी का रीजन था कि भाई ईरान वॉर की वजह से, कोई भी रीजन था, वो नहीं रिमिट हो पाई, वो आगे होगी, तो वो आपको फिर से वन फॉर्म 146 फाइल करना पड़ेगा। अब 146 के अंदर इन्होंने सर्टेन चेंजेस भी करे, बट वो बहुत ही माइन्यूट चेंजेस है, जैसे कि यूडिन उसके अंदर मेंशन करना और इस तरीके के चेंजेस मेंशन हो गए। पहले भी बैंक हमसे अलग से यूडिन लिखवाता था, अब उस फॉर्म के अंदर हमें यूडिन ऑलरेडी मेंशन करके ही जनरेट करना पड़ेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट एक, मोनिका जी का क्वेश्चन है कि अगर FNO इनकम जनरेट हो रही है अंडर PGBP तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी? मैम, आपने, आपके इस क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। आप खुद ही कह रहे हैं अगर इनकम जनरेट PGBP से हो रही है, चाहे वो FNO हो चाहे वो कुछ भी हो, तो आपको 31 अगस्त के हिसाब से ही उसको फाइल करना होगा। अगर PGBP हो रही है तो फॉर्म 3 भरना होगा, और फॉर्म 3 31 अगस्त की लास्ट डेट है। चैरिटेबल ट्रस्ट, ये, इसके जो फॉर्म्स है उनमें चेंजेस आए हैं, और इसमें जो एक चेंज आया है वो ये आया है कि अभी हमने ज्यादातर के असेसमेंट ईयर 26-27 के जो फॉर्म्स थे वो असेसमेंट ईयर स्टार्ट होने से 6 मंथ्स पहले अप्लाई करना था, तो हमने, जिन्होंने रिन्यूअल करा है उन्होंने ज्यादातर ने फॉर्म 10A भी भरा होगा बिफोर 30 मार्च 2025। तो 30 मार्च से पहले पहले उन्होंने वो फॉर्म भरे, और अब जाके वो फॉर्म या तो एक्सेप्ट हो गए हैं या वो रिजेक्ट हो गया। जिनके रिजेक्ट हुआ है वो अब ITAT से जाके उनको रिमांड बैक करवा रहे हैं। लेकिन जो भी फॉर्म्स है जो अब 1 अप्रैल 2026 को फिल आउट होंगे, वो फॉर्म 104 और 105 में फिल आउट होंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन प्रायर ईयर्स का हो, चाहे वो सब्सिक्वेंट फ्यूचर ईयर्स का हो। आपके आज के जो फॉर्म होंगे वो होंगे 104 105।
किसी का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया, वो ट्राइब्यूनल गया, ट्राइब्यूनल ने रिमांड बैक करके वापस वापस बोला रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और उसने कहा आप फिर से फॉर्म फाइल करेंगे, तो आपको फॉर्म 10A भी नहीं फाइल करना, आपको 104 105 फाइल करना है। जो डिपार्टमेंट अगर ग्रांट करेगा या रिजेक्ट करेगा वो 107 में करेगा, फॉर्म में 10AD में नहीं करेगा। 10AD में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। किसी का ट्रस्ट से रिगार्डिंग में कोई डाउट है? ट्रस्ट की किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज बताइए। मैं दिल्ली मैं दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एडवोकेट हूं, तो दिल्ली के जितने भी सिविक सेंटर बिल्डिंग में फ्लोर नंबर 24 एंड 26 में बिफोर मार्च बहुत ज्यादा भीड़ थी। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ होंगे जो मेरी बात से रेजोनेट कर पा रहे होंगे। वो भीड़ थी जस्ट बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल ऑफ ट्रस्ट। 12A और 80G के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में अब जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा 104। जिनका एक्सेप्ट नहीं हो पाया अब उनको 104 में नया फॉर्म भरना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि वो कोई भी ईयर हो। साफिया जी का क्वेश्चन है कि क्या फॉर्म भरना होगा? 104 भरना होगा अगर जिसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नई ट्रस्ट का है तो उसे। उपेंद्र तनेजा जी का हाउ टू चेक द स्टेटस ऑफ रिन्यूअल एप्लीकेशन। सर वो ऑर्डर आ चुका होगा आज की डेट में आपके पोर्टल पे, बिफोर 31 मार्च वो ऑर्डर आ चुका होगा। क्योंकि अंडर 112, सॉरी, सेक्शन 12AA सबसेक्शन 2 बोलता है कि जब आपने फाइलिंग करी है उस मंथ के विद इन 6 मंथ्स उनको ऑर्डर पास कर देना है। और अगर आपका अभी आपने रिसेंटली फाइल करा है, आपकी तरफ से डिले है, तो हो सकता है उन्होंने ऑर्डर नहीं पास किया होगा। और अगर आपको वो नहीं पता लग पा रहा है तो आप ई प्रोसीडिंग्स में देख सकते हैं, अदरवाइज आपको अपने जाओ के पास जाके पूछना पड़ेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट के रिगार्डिंग में ये है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है जो कि आता है विद रिगार्ड टू रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स। यहाँ पे काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे जिनके क्लाइंट्स को रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स का अभी नोटिस आया होगा, 148 कैपिटल ए की नोटिस आया होगा बिफोर 31 मार्च 2026 रिसेंटली फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 2021। या मैंने एक दो केसेस देखे जिसमें असेसमेंट ईयर 24-25 में नोटिस आया है। जिन जिन को आया प्लीज यहाँ पे यस लिखिए, चैट बॉक्स में प्लीज यस लिखिए। किन किन के क्लाइंट्स को 148 के नोटिस आए, 148 कैपिटल ए के नोटिस आए हैं? थैंक यू सीमा चौधरी जी, थैंक यू नवीन जी। किन किन के क्लाइंट्स को आए हैं 148 के नोटिस? अच्छा, कोई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनको डायरेक्टली 148 का नोटिस आ गया विदाउट 148A का नोटिस आए हुए? मेरे को काफी क्वेरीज आई थी कि हमें 148A का नोटिस, 148 का नोटिस कैसे आ गया विदाउट रिसीविंग अंडर 148A। तो देखिए, अगर आपका उस टाइम का जो लॉ था, उस टाइम के लॉ के हिसाब से अगर आपकी जो 148 का नोटिस आया है दैट इज बिकॉज ऑफ सर्च एंड सीजर एक्शन ऑफ सम अदर पर्सन डेटेड 1/4/2021 से लेके 30/9/2024 तक में अगर कोई सर्च हुई है और वहां से कोई मटेरियल निकला है और आपके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन आई है तो उसे 148 नहीं देना है। मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से सुनिए क्योंकि बार बारी बोलना भी डिफिकल्ट होता है और सुनना भी डिफिकल्ट होता है। 1/4/2021, 1/4/2021 के बाद की कोई सर्च हुई है, लेकिन वो सर्च हुई है 30 नवंबर 2024 से पहले पहले की।
उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी को डायरेक्टली 148 का नोटिस आ गया है। किसी को इन 3.5 सालों में कोई सर्च हुई है और वहां से कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है, स्टेटमेंट नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, मटेरियल मिला है, तो उस केस में उनको 148 का नोटिस आ जाएगा। बहुत से बिल्डर्स जैसे कि ओमैक्स ग्रुप या और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के नोटिस आए हैं फॉर परचेजिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें बोला एलिगेशन है कि आपने कैश देके इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी है, उनको डायरेक्टली 148 आ जाएगा। लेकिन अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 148 ए इज सेक्शन 281। सेक्शन 281 एक 148 ए है और सेक्शन 280 सेक्शन 148 है। तो अब एओ 148 प्रपोज कर सकता है विदाउट 148 ए तीन चीजों में, तीन कंडीशंस में वो कर सकता है। नंबर वन कंडीशन है कि जब उसको इंफॉर्मेशन अंडर फेसलेस कलेक्शन स्कीम में मिला, जो कि अभी करंटली 135 कैपिटल है। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन जो लिटिगेशन से रिलेटेड है और वो ध्यान से सुनेंगे तो उनको पता लगेगा, उनके लिए बहुत काम की चीज है। उन चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन टैक्स प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिटिगेशन से रिलेटेड है। कौन कौन से ऐसे इंस्टेंसेस है जहां पे आपको डायरेक्टली 148 आ सकता है? नंबर वन इज जहां से उनको फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मिली है, वहां से उनको डायरेक्टली 148 आ सकता है। अब नया एक इसमें एक्ट ऐड हुआ है, नया इसमें डायरेक्शन ऐड हुआ है, वो है कि जब गार के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, चैप्टर 11 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 गार के प्रोविजंस बोलता है। गार के प्रोविजंस का क्या मतलब होता है कि ऐसी एंटी अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस जो कि जिसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस ना हो, अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस ना हो, उन वाली ट्रांजैक्शंस के लिए डायरेक्टली 148 आ सकता है, 148 नहीं, ए नहीं आएगा। जैसे कि मीनिंग देयर बाय कि कोई एंटिटी है, वो अपने आप को वो अपने आप को पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लेती है और उसके बाद सेल आउट करती है टू डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स और वापस अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में। तो अगर आप इस तरीके की स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे जिसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं दिखेगा एंड ओनली टैक्स प्लानिंग दिखेगी, तो उन केसेस के लिए ये नया आया है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2025, उन केसेस में डायरेक्टली 148 खुल जाएगा जहां पर भी गार की इंप्लीमेंटेशन हो रही है। या फिर अगर कोई फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी सीआईटी अपील्स की कोई फाइंडिंग है, डायरेक्शन है ट्राइब्यूनल का, या कोई ऑर्डर है कोई कोर्ट का इन एनी अदर लॉ, जिससे पता लगा कि इस पर्सन की एस्केपमेंट हो रही थी इनकम की, तो उन केस में वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड नहीं देंगे और डायरेक्टली 148 भेज देंगे। नए एक्ट में डायरेक्टली 280 भेज देंगे, आपको 281 भेजने की कोई उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तीन कंडीशंस है जहां पे आपको डायरेक्टली सेक्शन 280 आ जाएगा, सेक्शन 148 आ जाएगा, 148 नहीं भेजेंगे। और ये अब इन्होंने एक्सटेंड करी है अंडर द न्यू एक्ट, वन ऑफ द फ्यू चेंजेस अंडर द न्यू एक्ट जो हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेजर अमेंडमेंट इन फॉर्म 3CD, 3CA और 3CB। फॉर्म 3CD, 3CA। सत्यम, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल सर। ओके। जी सर। 3CD, 3CA, 3CB में चेंजेस आए हैं। तो ये तीनों फॉर्म्स जो है वो हो गए फॉर्म 26 में। जो पहले ये तीन फॉर्म थे, 3CD, 3CA और 3CB, ये तीनों हो गए फॉर्म 26। 3CA उनके लिए एप्लीकेबल है जहां पे फॉर्म्स का ऑडिट होना है इन एनी अदर एक्ट।
तो उनको 3CA की सर्टिफिकेशन देनी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। 3CB में जहां पे एनी अदर एक्ट में सर्टिफिकेशन नहीं होता है, वहां पे ऑडिट नहीं होता, वहां पे सर्टिफिकेशन देनी है। और जहां पे 3CD होता है, वहां पे मेजर अमेंडमेंट, वहां पे आपको जो है आपको सिर्फ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरनी होती है। अब वो हो गया है फॉर्म 26। फॉर्म 26 के अंदर 4 पार्ट हो गए हैं। पार्ट A, B, C, D। पार्ट ए सिमिलर टू पार्ट ए ऑफ फॉर्म 3CD। पार्ट बी सिमिलर टू पार्ट बी ऑफ फॉर्म 3CD। पार्ट सी जो फॉर्म 3CA था, वो अब पार्ट सी हो गया है फॉर्म 26 का। पार्ट डी जो फॉर्म 3CB था, वो हो गया पार्ट डी ऑफ फॉर्म 26। तो आइदर द क्लाइंट हैज assessee has to fill part A, B, C, या फिर he has to fill A, B, D। आप A, B, C, D तीनों नहीं, चारों नहीं फिल कर सकते। या तो A, B, C फिल करेंगे या आप A, B, D फिल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको अमेंडमेंट बता रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एप्लीकेबल होने वाली है। ये जो एप्लीकेबल होगी फॉर्म 26, ये एप्लीकेबल होगी सितंबर 2027 में। ये नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबिलिटी इसकी आएगी। लेकिन इसके अंदर ऐसी सर्टेन चेंजेस है, इसके अंदर सर्टेन ऐसे चेंजेस है जो कि आपको अभी ही इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे अपने सिस्टम्स में। देखिए, अब अंडर द न्यू एक्ट एक बहुत मेजर चेंज आया है। वो आया है फॉर्म 46, वो आया है रूल 46 में, जो पहले होता था रूल 6F में। अब मेरी बात जो है नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे 3-4 मिनट बहुत ज्यादा ध्यान से सुन लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी क्रक्स है इन फॉर्म 3CD का। सबसे पहला है कि रूल 6F होता था पहले एक्ट में। ओल्ड एक्ट में रूल 6F क्या कहता था? कहता था कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब होती थी, उस तरीके से उनको मेंटेन करनी होती थी। अब नया फॉर्म रूल 46 आ गया है, जो कि बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है अंडर डिजिटल फॉर्म। अब आपको ओल्ड फॉर्म में नहीं मेंटेन करनी है, अब आपको फॉर्म डिजिटल में मेंटेन करनी है। और जब आपको फॉर्म डिजिटल में मेंटेन करनी है, अभी भी हमारे मेजोरिटी ऑफ द क्लाइंट सारे डिजिटल में मेंटेन कर रहे होंगे। हार्डली 1-2% ऐसे क्लाइंट होंगे जो मैनुअली मेंटेन कर रहे होंगे, बट अब डिजिटल मेंटेनेंस कंपलसरी हो गई है। अब इसमें चेंजेस, ये मेजर चेंज नहीं है कि डिजिटल हुआ है कि ये हुआ है। अब ये है कि हमें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या सर्टिफाई करना है। तो हमें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट को चीजें सर्टिफिकेशन जो है वो करनी है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे नया फॉर्म में चेंजेस आए। देखिए, ये है नया फॉर्म 26, जो सेक्शन 63 के थ्रू होगा। इसमें आपको पहले सेलेक्ट करना है कि आप A, B, C भरेंगे या A, B, D भरेंगे। ये सब आपको भरने के बाद आपको इसके अंदर एक क्लॉज 14 आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 14 आता है। अभी के टाइम में क्लॉज 11 है, जो कि बोलता है कि आपको ये एड्रेस बताना है कि कहाँ पे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हुई है, कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हुई है। वो यही सेम चीज बोलता है। लेकिन अब इसका पार्ट बी बोलता है कि हमें सर्टिफाई करना है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि यूज हुआ है फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंप्यूटर सिस्टम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होगी और हमें उसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बताना है कि कौन सा है। ये पहले कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने बता दिया कि हमारा क्लाइंट ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। अब एक नई चीज आई है, आपको ये बताना है कि आपके क्लाइंट की जो बुक्स है वो कौन से क्लाउड में, और उस क्लाउड का और उस लोकेशन का IP एड्रेस बताना है आपको। दिस इज द मेजर एंड द ह्यूज चेंज। आपको अपने क्लाइंट का सिस्टम का IP एड्रेस बताना है जिसमें उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट स्टोर हुई है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके IP एड्रेस जो आप मेंशन करेंगे, उस IP एड्रेस में वही 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 वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए।
आज की डेट में देखिए, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे जो अपने क्लाइंट की खुद की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होंगे अपनी सिस्टम पे। अब आप वो चीज नहीं कर सकते हैं। अब आपको क्लाइंट का आईपी एड्रेस डालना होगा फॉर्म 26 में, और ये आज से ही कर दीजिए। सितंबर 27 में आपके पास ये चीज अमेंड करने का टाइम नहीं होगा। ये आपको पॉलिसी आज से फॉलो करनी होगी। टैक्स ईयर 26-27 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो क्लाइंट के सिस्टम में आपको बुक्स मेंटेन करनी होगी, उस सिस्टम में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा। अब एक और चेंज आया, जो बहुत ही बड़ा चेंज आया है, वो यह है कि रूल 46 में एक सब रूल 8 आया है। रूल 46 मैंने आपको बताया कि जो रूल 6F के कॉरस्पॉन्डिंग रूल था, उसमें सब रूल 8 आया है। बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रूल 46 सब रूल 8 कहता है कि क्लाइंट को इंक्रीमेंटल डेली बैकअप बनाना है। क्लाइंट को देखिए, इससे कंप्लायंस कॉस्ट कितनी बढ़ गई है क्लाइंट की। क्लाइंट को इंक्रीमेंटल डेली बैकअप सर्वर बनाना है, और वो जो सर्वर है दैट शुड बी लोकेटेड इन इंडिया। और इसके दो पर्पस है। क्या पर्पस है? सबसे पहला पर्पस ये है, नंबर वन पर्पस इज कि डाटा लोकलाइजेशन होनी चाहिए। दे डोंट वांट द बिग कंपनीज, Amazon, गूगल, दे डोंट वांट कि देयर डाटा जो है दैट शुड बी इन यूएसए या इन फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंट्री। उनका सबका डाटा इंडिया में होना चाहिए बैकअप का। और आपके अपने क्लाइंट का डाटा जो है उसका बैकअप होना चाहिए, डेली इंक्रीमेंटल बैकअप होना चाहिए इन इंडिया। क्यों होना चाहिए वो? उसके लिए बहुत सिंपल सी बात यह है कि डिपार्टमेंट ये चाहता है कि अगर आपके पास डाटा है, डिजिटल डाटा है, और हमने कोई सर्च करी, सर्वे किया, उस टाइम पे क्लाइंट कैन नॉट गेट अवे बाय सेइंग कि मेरा डाटा करप्ट हो गया, खत्म, आई कैन नॉट प्रोवाइड यू द डाटा। आपका एक अलग सर्वर होना चाहिए जिसमें आपका बैकअप मेंटेन होना चाहिए, और वो बैकअप मेंटेन है कि नहीं है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफाई करना है इन सितंबर 27। और वो सर्टिफाई कब कैसे करेगा? जब आप अपने क्लाइंट को बताओगे ये बात। वो करे नहीं करे दैट इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा ईमेल डाल के कि सर ये चीज करिए। आपको बताना पड़ेगा कि ये रिक्वायरमेंट नहीं आई है, कि अब आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। अब आपको आपका आईपी एड्रेस डलेगा। ये सारी चीजें आपको मेंटेन बतानी पड़ेगी अपने क्लाइंट को। और उसके बेसिस पे आगे चल के जो है चीजें डेवलप होगी। मैं फॉर्म 26 के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब मैंने सेमिनार दिया था इनकम टैक्स रूल 2026 का, उसमें मैंने इसमें बहुत डिटेल में क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन किया था कि किन किन लोगों को कैसे कैसे हमें फॉर्म 26 भरना है। और ये वो सेमिनार मोर देन 1.5 आवर्स चला था। तो एक जो बहुत मेजर चेंज है जो आपको अभी बताना पड़ेगा अपने क्लाइंट को, वो ये बताना पड़ेगा कि आपको डिजिटल बैकअप करना है। और मैंने इसमें ये बताया कि सर्टन अपने व्यूज बताए कि जो पहले फॉर्म 3CD था वो किस तरीके से कंप्लायंस ओरिएंटेड था। अब का जो फॉर्म 26 है वो डाटा ओरिएंटेड, एनालिटिक्स ओरिएंटेड है। मीनिंग देयर बाय कि वो क्रॉस वेरीफाई कर रहा है इंफॉर्मेशन बहुत सारी विद योर ITRs, जो वो पहले नहीं कर पा रहा था। जो इंफॉर्मेशन अब हमें भरनी है विद रिगार्ड टू 269SS 269ST, वो जो हमें लोन्स की इंफॉर्मेशन भरनी है, उसको उन्होंने कोडिफाइड मैनर में किया है। क्यों कोडिफाइड मैनर में किया है? बिकॉज दे ओनली वांट डाटा एनालिटिक्स। दे वांट कि आपने क्या लोन में आपने क्या चीजें डाली है, किस तरीके क्या आपने मोड डाला है उन लोन्स का। और उन उन कोड्स जो है वो माइट बी ट्रैकिंग विद योर आईपी एड्रेस, और जो उसका अदर साइड ऑफ द पर्सन है उसने क्या कोड डाला है विद देयर आईपी एड्रेस, एंड दे माइट एबल टू एनालाइज इट। इतनी स्ट्रांग लेवल की इन्होंने डाटा एनालिटिक्स मेंटेन डेवलप करी है। तो देखिए, आपको फॉर्म 26 से रिगार्डिंग में चेंजेस जो है वो आपको पता होने चाहिए।
आज से पता होने चाहिए, चाहे वो आपको सर्टिफाई करना है सितंबर 27 में, लेकिन वो सारे चेंजेस आपको आज से पता होने चाहिए। और सिर्फ पता ही नहीं होने चाहिए। देखिए, नॉलेज मैंने आपको ये पहले भी बताई, हम एज अ प्रोफेशनल की ग्रोथ कैसे होती है। आप यहाँ पे आज आपने थोड़ी चीजें सीखी है, समझी है, लेकिन अल्टीमेट वो ग्रोथ होगी तब जब उस नॉलेज को लेके आप कुछ एक्शन कर पाए। और जब वो एक्शन, नॉलेज प्लस एक्शन होगी, तब वो इफेक्टिवली ग्रोथ होता है। एक्शन आप ही कर सकते हैं, एक्शन मैं नहीं कर सकता। अब आपको एक्शन कैसे करना है वो मैं आपको बता सकता हूं कि आपको फॉर्म 26 में जो चेंजेस आए हैं वो आपको अपने क्लाइंट्स को बताने हैं। आपको आज की डेट में ही बताना है कि देर आर अब 53 क्लॉजेस हो गए, जो पहले 44 क्लॉजेस थे। और क्योंकि नंबर ऑफ क्लॉजेस इतने बढ़ गए हैं, तो आपको उनको आज ही मेंशन करनी है कि भाई आई वांट टू इंक्रीज माय फीस फ्रॉम 20 to 25% बिकॉज इट हैज बीन कमेंसरेटेड विद माय वर्क। आप यही चीज, दिस इज ओनली कॉल्ड एज प्रोएक्टिवनेस। आप यही चीज जो है अपने क्लाइंट को सितंबर 2027 में जाके बोलेंगे कि नहीं, आपके तो क्लॉजेस बहुत बढ़ गए, मेरी फीस इंक्रीज कर दो, वो कभी नहीं करेगा। क्लाइंट क्या फीस इंक्रीज कर देगा? आप उसे सितंबर 2027 में जाके बोलेंगे? वो कभी नहीं करेगा। आपको उसको आज बताना होगा कि आपके 1.5 सालों बाद आपका क्लॉज जो है वो इतने बढ़ने वाले हैं और मेरी फीस भी उस हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है। और आज की डेट में वो आपको कुछ कहेगा भी नहीं, वो कहेगा चलो 1.5 साल के 1.5 साल बाद देखेंगे। और जब तक 1.5 साल हो जाएंगे तब तक वो अपना आधे से ज्यादा माइंड मेकअप कर चुका होगा, फिर वो आपको कुछ बोलेगा भी नहीं। लेकिन आपको प्रोएक्टिवनेस शो होनी चाहिए, आपको वो एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, तभी इस सेमिनार का आपको फायदा है। तो आपको मेजर चेंजेस जो है वो बताने हैं 3CD के। और आपको ये मेंशन करना है उसमें जरूर कि भाई मेरी आई वांट माय फीस टू बी इंक्रीज बिकॉज, और ये जो फीस इंक्रीज करे वो जेन्युइन है। इसमें इसमें कोई, हम उनको किसी, मैं इलॉजिकल तरीके से, लीगल तरीके से मैं उनसे मनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं कह रही, हमारी मेहनत का पैसा है। हम मेहनत कर रहे हैं इतनी, तो हमारी फीस क्यों नहीं इंक्रीज हो? लेकिन वो तभी होगी जब हम स्ट्रेटेजिकली सोच के अपने क्लाइंट को गाइड करेंगे। किसी का यहाँ पे क्वेश्चन आया कि अगर बैकअप नहीं मेंटेन किया तो क्या होगा। अगर बैकअप नहीं मेंटेन किया तो आपको यहाँ पे सर्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं बैकअप मेंटेन हुआ हुआ। और नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो 25,000 रुपए की पेनल्टी है 271 AA में, जो 44 AA में नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, उसकी जो पेनल्टी है वो लग जाएगी क्लाइंट को। तो आप यहाँ पे नो सर्टिफाई करेंगे और वहां पे वो पेनल्टी इशू कर देगा। देखिए कितना डेंजरस है। और डेंजरस तब हो जाएगा जब उसको पेनल्टी आ जाएगी और क्लाइंट हमारे पास आएगा कि सर आपने तो मुझे बताया ही नहीं, ये चीज बता तो देते मेरे को मेल करके या फोन करके। अब ये चीज मेरी रिस्पॉन्स, उस क्लाइंट की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीजों के बारे में जानना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें उसको सेंसिटाइज करके हमें अपने हक के पैसा भी लेना चाहिए। दिस इज जस्ट माय माय व्यू। और आप अगर चाहते हैं तो मैं इसके रिगार्डिंग में जो 3CD की के रिगार्डिंग में भी ईमेल आपको शेयर कर सकता हूं। ऑब्वियसली बहुत ही ड्राफ्ट ईमेल होगी, आपको उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना होगा। और वो मॉडिफिकेशन करके देन यू शुड शूट द ईमेल एज सून एज पॉसिबल। अपने तरीके, अपने तरफ से आप अपना बर्डन ऑफ कीजिए, लेकिन क्लाइंट को सेंसिटाइज कीजिए, क्लाइंट को नॉलेज प्रोवाइड कीजिए।
और जहां पे जेन्युइन लग रहा है वहां पे अपनी फीस इंक्रीज की भी अभी ही बात कर लीजिए। और इसके रिगार्डिंग में अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज। Loveleen Agarwal, is backup clause in Form 10 BB is also for backup. Is similar clause in 10 BB? लवलीन जी, मेरे को 10 बीबी फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, किस किस रिगार्डिंग में होता है ये। और अगर आपके कोई 3C D से रिगार्डिंग में व्यू है, मेरे को पता है मैंने आपको 3C D के हार्डली कोई क्लॉजेस के बारे में बताया है, लेकिन अगर आपको अदरवाइज अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा। मैं आपको सबको अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा। और उस ईमेल पे प्लीज आप लोग मेरे को मेल कर दीजिए, या आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मेरे पास ईमेल व्हाट्सएप कर दूंगा मैं आपको। अब देखिए, मैं एज अ एडवोकेट वर्क करता हूं। मैं फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सारी नॉलेज लेके इवेंचुअली मैं लिटिगेशन की फील्ड में मूव हुआ। और आज की डेट में मैं असिस्टेंट प्रोवाइड करता हूं फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं B2B का वर्क करता हूं। और मेरे साथ बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनको एक ऐसी लिटिगेशन आर्म प्रोवाइड करता हूं जिससे कि वो अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। मैं उनको गाइड करता हूं कि कहाँ कहाँ पे विद रिगार्ड टू लिटिगेशन वो दे कैन रेज देयर बिल टू द क्लाइंट्स, और जो जेन्युइन तरीके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपील इफेक्ट के टाइम पे मैं उनको बताऊंगा कि आप यहां से अपने क्लाइंट्स से बिल एक्स्ट्रा रेज कर सकते हैं। या मैं उनको ये बताऊंगा कि कैसे आपके जो है क्लाइंट्स के जो मैटर चल रहे हैं उनको कैसे आप अर्ली हियरिंग में डालें, चाहे वो CIT अपील्स में, चाहे वो ITAT में। किस तरीके से ITAT में अर्ली हियरिंग में वो मैटर्स डाले। मैं उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये गाइड करता हूं कि इन प्रोविजंस के, इन 148 नोटिस के लिए आपको अपील जाना चाहिए या आपको रिट के थ्रू जाना चाहिए। कोई शो कॉज नोटिस आया, क्या आपको इसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करके असेसमेंट करानी चाहिए या आपको अभी रिट में जाके इसे क्वैशिंग करानी चाहिए। कोई अटैचमेंट हो रहा है, बैंक अकाउंट अटैचमेंट हो रही है, कोई पुराने सालों का रिफंड है जो अटका हुआ है, वो हाई कोर्ट से जाके मैंडेमस लेके उनको रिजॉल्व करवाना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर देता हूं, और आप लोगों को अगर कोई 148 के रिगार्डिंग में या कोई भी इनकम टैक्स के रिगार्डिंग में कोई भी इशू हो तो प्लीज आप मेरे को एक मैसेज ड्रॉप कीजिए। मैं आपको डेफिनेटली ईमेल्स और चीजें भी शेयर करूंगा, और मैं आप लोगों के साथ में अपना नेटवर्क एंड कनेक्शन भी बनाना प्रेफर करूंगा। यहाँ पे शेयर कर दिया। मैंने अपना नंबर और ईमेल आईडी भी शेयर कर दिया है। आप सब लोग जितना कनेक्ट होंगे उतनी उससे सिनर्जी क्रिएट होती है और उतना वैल्यू प्रोवाइड होती है। और मेरे को ये भी पता है, मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूं, मुझे ये भी पता है कि मैं अगर सामने वाले को अगर मैं सामने वाले को एक 100 रुपीज की वैल्यू प्रोवाइड करता हूं, तो मेरी जो खुद की फीस होगी वो उससे बहुत कम होगी। तभी सामने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को फीस पे करता है, जब मैं उसको उससे बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करूं। तो ये इससे सिर्फ सिनर्जी बढ़ेगी। एंड अगर आपको कोई भी लीगल और टेक्निकल इशू है, देन यू कैन कॉल मी। और मैं 24/7 अवेलेबल हूं। अगर आपको ट्रांजिशन से रिगार्डिंग में, प्रोसीजरल ट्रांजिशन से रिगार्डिंग में कोई इशू है, देन आई लव टू हेल्प यू। कोई इशू नहीं है, मेरी सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई चार्जेस नहीं है, और मेरे पास बहुत टाइम है, एंड यू कैन कॉल मी एनी टाइम। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस है, देन आई लव टू आंसर।
ठीक है, थैंक यू। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज यू कैन कॉल मी, एंड मैं आपको अपनी तरफ से जितना जेन्युइन से जेन्युइन हेल्प हो सके मैं डेफिनेटली असिस्ट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। सत्यम आप। Thank you everyone for your valuable participation in today's webinar. On behalf of all participants, I extend sincere thanks to Advocate C.S. Khargar for his insightful and practical guidance on the changes effective from 1st April 2026. His perspective will certainly help us support approach, compliance, and tax planning more effectively. We appreciate your engagement and look forward to connecting again. Thank you to all. Thank you, sir. थैंक यू।